नाउ इफ यू रिमेंबर इन 11th स्टैंडर्ड में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे. वी राइट डाउन y इज ऑल्सो रिटर्न एज f ऑफ x, और अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करता हूं वी राइट डाउन इट एज f डैश x. आपको याद होगा तो y क्या है, इट इज द फंक्शन, और अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करता हूं तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy अपॉन dx. और अगर f ऑफ x के टर्म में लिखना रहेगा तो आई जस्ट पुट अ डैश ओवर हियर f डैश x. ओके, ये आपको याद रखना है. नाउ सपोज इफ इट इज y then what is dy upon dx. So first of all we will write down a formula x raised to n. एक टर्म है ये x raised to n. How we write down x raised to n? I can also write down x is suppose a number called is a variable x and n is a constant. For example 3. ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, हमने डिराइव किया है लास्ट ईयर में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. द फॉर्मूला इज n x raised to n minus 1. अगर आप ध्यान देंगे सो व्हाट हैज हैपेंड हियर, यहां पर क्या हुआ है, ये n आगे गया है, ठीक है, एंड दिस इज x रेज टू n माइनस 1. ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, जो पावर था x विल रिमेन एज इट इज एंड 3 माइनस 1 इज 2. गॉट इट. एक एक फॉर्मूला हम आराम से डिस्कस करते हैं बिकॉज एवरीथिंग लाइज इफ यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूलाज. अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया यू कैन इजीली सॉल्व डिफरेंशिएशन बेटा. नाउ सी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया. फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज x रेज टू n इज रिटन एज n x रेज टू n माइनस 1. I request you all to take out your notebook and pen so that whenever required आप चीजों को नोट कर सकें. And this is very important. नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए. Now moving further, x raised to n x raised to n minus 1. Now second is, for example I'll write down x raised to n के बाद a raised to x. यहाँ पर क्या था पहले, it was x raised to n, यानी this is a variable raised as a constant, variable raised to constant. So I got this formula. What if a constant raised as a variable? इसका भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, हमने डिराइव किया था 11th स्टैंडर्ड में. When a constant raises a variable, in this case we get a value that is a raised to x. This is a raised to x log of a. ठीक है, ध्यान से देखो और लिख लो आप ये सारी चीजें. थर्ड expression is e raised to x. Now if it is e raised to x, we again get e raised to x log e. But as you all know कि log e का वैल्यू क्या होता है, it is 1. So if log e stands for 1, I can only write down e raised to x. So e raised to x का derivative is e raised to x. Now there are only 7 people left who are watching this live lecture. I'll see who have left, because you have given your attendance and left from the lecture. I'll talk to your parents. Okay, e raised to x. Now e raised to x. Now what अगला फॉर्मूला क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन log of mod x. वी राइट डाउन mod x. why? I'll explain you मैं mod x क्यों लिख रहा हूँ. log of mod x का जो डिफरेंशिएशन हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, इट वॉज 1 upon x. You should write this down. Now if you'll ask why mod of x, see सपोज देखो log x का ग्राफ जो होता है ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है. इसका टैंजेंट यहां पर बनेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका टैंजेंट यहां पर बनेगा. सी log x का वैल्यू कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, याद रखो आप, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट डिफरेंशिएशन वैल्यू ऑलवेज आई विल गेट इज 1 upon x. सो प्लीज रिमेंबर दिस. यहां पर हम mod x लिखते हैं, बट व्हेन वी टेक आउट द आंसर वी राइट डाउन 1 upon x. सो log x का डिफरेंशिएशन इज 1 upon x. Okay, moving further, log x, e raised to x, a raised to x. What else? Okay, now we will discuss. These are the 3 important formulas, algebraic formulas. These 4. Now we will discuss. I hope you have written this. We will discuss the trigonometric differentiation. Now, trigonometric differentiation is what? How many trigonometrical values you know? You know sin x. You know cos x, you know tan x, cot x, sec x and cosec x. These are the 6 trigonometries. Now
Last time in 11th standard we have derived all the differentiation of all these 6 values using first principle. I just write down the differentiation values, that is sin x का आता है minus cos x का आता है sin x, tan x का आता है, tan x का डिफरेंशिएशन है sec square x, cot x का है माइनस, सॉरी sin x is cos x is minus sin x, cot x is minus cosec square x, sec x is written as sec x, tan x, and cosec x is written as cosec x and cot x. Please write down these values. sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos x है, cos x is minus sin x, tan x is sec square x, cot x is minus cosec square x, sec x is sec x tan x, cosec x is minus cosec x cot x. Got it? Please note this down. I'll ask you to send the images of these formulas once the lecture is over. So I'll come to know that who have attended this lecture. Lecture किसने attend किया है वो सारे लोग मुझे WhatsApp पे will send these pictures that you have written all these formulas. That will prove that you were attending the lecture. ठीक है, फिर से बताता हूँ मैं. sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x. मतलब इफ यू सी क्रॉस में sin x का अगर cos x आता है तो cos x का sin x आता है, लेकिन नेगेटिव में. tan x का वैल्यू जो है वो डिफरेंशिएशन sec square x है, cot x का माइनस cosec square x है, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x. I hope you have copied these values. Okay, say yes if you have copied these formulas. कमेंट में लिखो आप अगर आपका हो गया है तो, so that I can rub it out. We have all derived these formulas from 11th standard. डेरिवेटिव चैप्टर से डिफरेंशिएशन में हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, इफ यू रिमेंबर. आई जस्ट वांटेड टू नो इफ प्रांजल इज देयर. मैं इसे रब करता हूं. Now let us discuss two more forms. There are some properties of differentiation. Now the properties of differentiation, or I can say the rules of differentiation, I'll write down here. Rules of derivative or differentiation. So the first rule of differentiation is, I'll write down addition or subtraction rule. Addition or subtraction rule. Now what is addition or subtraction rule? Now suppose there are two functions. Differentiation of f is one function. There is plus or minus between the other function, between the two functions. For f is one function, g is other function, and it could be plus or minus. So in this case we can take out the derivative individually. Differentiation of f dash x. मैंने आपको बताया था कि अगर f of x फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इज रिटन एज, आई मीन डिफरेंशिएशन इज रिटन एज f dash x, and so it is already derived, so no need not to write down d upon dx. f dash x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f of x और g dash x मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ g of x. मतलब अगर दोनों फंक्शन एडेड और सब्ट्रैक्टेड है एक साथ तो व्हेन वी टेक आउट द डिफरेंशिएशन वी राइट देम डाउन सेपरेटली. ठीक है, अगला जो रूल है दैट इज रूल ऑफ कांस्टेंट. रूल ऑफ कांस्टेंट. अब ये क्या कहता है, रूल ऑफ कांस्टेंट क्या कहता है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और अगर उस डेरिवेटिव के साथ, सॉरी, this is the function, f of x is the function and k is a constant. तो अगर हम एक ऐसे टर्म का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जहां पर एक कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन, तो इन दिस केस द कांस्टेंट डजंट गेट डिराइव्ड. कांस्टेंट क्या होता है, वो बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव किसका निकलता है, f of x का. ठीक है, व्हाट हैपेंस हियर,
कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को हम डिराइव नहीं करते हैं, वी डिराइव द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आपको ये ध्यान में रखना है। सो रूल ऑफ कांस्टेंट्स इज के एफ ऑफ एक्स, के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हाट नेक्स्ट? प्रोडक्ट रूल 3 इज प्रोडक्ट rule. Product rule. Now what is product rule? Product rule is very important. This will be very helpful to you in solving problems. Suppose we are differentiation product of two variables u into v. u into v. Suppose we are हम लोग डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? दो वेरिएबल्स को। एक वेरिएबल का तो हमने सीखा, अभी जो फॉर्मुलास लिखे थे सारे एक वेरिएबल के थे। व्हाट हैपेंस इफ टू वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड और मुझे उसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ इन दिस केस वी राइट डाउन डिफरेंट, पहले तो हम लिखेंगे फर्स्ट वेरिएबल दैट इज u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v यानी सेकेंड डेरिवेशन, सेकेंड फंक्शन डिराइव्ड द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं किस तरह से वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट रूल। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं x इंटू साइन एक्स। ये दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? तो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, मैंने जैसे यहां पर लिखा है u यानी पहला फंक्शन, x देन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर बीच में प्लस, वापस क्या है v यानी साइन एक्स, देन इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। नाउ x इज x, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कैन बी रिटन एज cos x। फिर यहां पर क्या है साइन x, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है तो साइन x, देन वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन इज 1। ठीक है, तो व्हाट आंसर आई एम गेटिंग? x cos x प्लस sin x। क्या हम और प्रॉब्लम डिस्कस करें इसके ऊपर? आप ये फॉर्मूला लिखिए, हम सबके ऊपर फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर रूल। तो ठीक है, मैं आगे के रूल प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करता हूं। आई होप यू हैव कॉपीड दिस, या कॉपी कर लो। आई गिव यू 1 मिनट टू कॉपी दिस, प्लीज कॉपी दिस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। डू आस्क मी इन द कमेंट्स। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लाइव लेक्चर्स, ताकि अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप इमीडिएटली हमसे पूछ लो एंड आई विल सॉल्व द डाउट्स इमीडिएटली। प्लीज कॉपी दिस डाउट। आई विल चेक द नोट्स वंस द लेक्चर इज ओवर। यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो द डाउट्स। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप प्लीज लिखिए उसको, आई विल सॉल्व इट इमीडिएटली। Okay, so I'll rub it now. Now let us start solving some problems. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं आपको चेन रूल बताता हूं, उसके बाद चेन रूल के ऊपर विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। चेन रूल, दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ फंक्शन f ऑफ g of x, got it? मतलब f तो ऑलरेडी एक फंक्शन है, f इज ऑलरेडी अ फंक्शन, और g of x उसके अंदर एक और फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले तो f डैश g of x यानी पहले फंक्शन f डिफरेंशिएट होगा। नाउ एज आई टोल्ड यू कि g of x एक ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट हो सकता है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, g of x को भी डिफरेंशिएट करना है।
नहीं समझा? अब मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन f of x विच इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1. ठीक है बेटा, अभी आप इसको देखेंगे तो हमको पता है कि साइन x डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहां पर जो x का वैल्यू है ना दैट इज 2x प्लस 1. मतलब सिर्फ अगर x होता तो x को डिफरेंशिएट करके आई वुड हैव गॉट द आंसर एज 1. बट यहां पर जो हमारा x के जगह पे जो टर्म है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टर्म जिसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे ना ये फंक्शन को, आई मीन जब मैं लिखूंगा f डैश x यानी आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? cos x. बट x की जगह पे क्या है? 2x प्लस 1. ठीक है, तो मैंने साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, बट जो अंदर जो टर्म है आई मीन 2x प्लस 1 उसे मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो व्हाट इफ आई डिफरेंशिएट दिस टर्म? दिस इज 2x प्लस 1. ओके, मतलब मैंने पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, मुझे मिला cos 2x प्लस 1, लेकिन जो अंदर टर्म है ना बाय चेन रूल उसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. नाउ आई विल राइट डाउन दिस एज cos 2x प्लस 1. नाउ मैं अगर अंदर जाता हूं तो बाई कांस्टेंट रूल क्या बोलता है? k और f ऑफ x है तो k को आगे लेना है और f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है. वैसे यहां पर 2 को आगे लेना है और x को डिफरेंशिएट करना है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1. ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? नाउ दिस इज cos 2x प्लस 1 into 2 into differentiation of dx upon dx gets cancelled. I got 1. ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज अ 0. अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज लिख लीजिए. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म यानी k इज ऑलवेज 0. ये फॉर्मूला शायद मैं लिखना वहां पर भूल गया था, बट वी हैव डिस्कस दिस इन 11th स्टैंडर्ड. सो यू शुड राइट डाउन दिस एज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. I just wanted to, because there are only 6 students there, just write your names in the comment who are present right now. Okay, now differentiation of k is equal to 0. So यहाँ पर 1 क्या था? कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आया. Now what I am getting? cos 2x plus 1 and also we have 2 1s are 2 left over here. So I can write down this as 2 cos 2x plus 1. Now this is a differentiation that I solved by chain rule. Aditya is there, okay? So this is how we solve. We use chain rule. Please आप ये problem note down कीजिए. Also write down your names in the comment again, please. Please copy this down. I'll solve one more problem of chain rule. See, don't get panicked. डरो नहीं. Differentiation is the most difficult chapter in calculus, यानी मैथ्स पार्ट 2 का पार्ट है ये आपका. बहुत डिफिकल्ट है, बट द मोर यू पे अटेंशन द मोर यू सॉल्व इट, यू विल बी वेल वर्स्ड इन दिस. तो आप प्लीज इसको सॉल्व कीजिए. प्रियेश, धीरज, तनीषा, साहिल. ओके, पंकज. ओके, आई होप यू हैव कॉपीड दिस. आई एम रबिंग दिस. और मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं आपके लिए. y is equal to sin 5x plus 3. ठीक है, अगर आप इसको नोटिस कर रहे हैं, साहिल इज देयर, हु एल्स? sin 5x plus 3. अब अगर आप इसको देखोगे, इफ आई डिफरेंशिएट दिस y डैश, आई मीन मैं इसको लिख सकता हूं dy अपॉन dx. मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, अभी यहां पर जैसे मैंने बताया कि साइन इज वन फंक्शन, उसके अंदर जो टर्म है x के जगह पे दैट इज अनदर फंक्शन जो डिफरेंशिएट हो सकता है. तो अगर मैं साइन को पहले डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे आएगा cos एंड 5x प्लस 3. और अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं 5x प्लस 3 देन व्हाट हैपेंस? क्या होता है फिर?
I'll write down cos का cos is already differentiated, cos 5x plus 3. Now when I differentiate this term, the differentiation will enter the bracket. Constant rule के हिसाब से 5 आगे आ जाएगा और क्या differentiate होगा, dx, x will get differentiated. फिर जब मैं 3 को differentiate करूंगा, क्योंकि 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, it is a constant, so constant 3 का differentiation is 0. So what I am getting, 5 ones are 5 cos 5x plus 3. Okay, so this is how we use chain rule while solving differentiation. This is very important. और भी क्वेश्चन हम मेरे पास है जो हम सॉल्व करेंगे using chain rule. Please copy this and we'll move further. Okay, I hope you have copied this. आगे चलते हैं. Now I'll discuss one more differentiation with you. Suppose this is root x. इसका differentiation कैसे निकालेंगे? How we'll take out the differentiation of root x? So this is root x. Root x का मतलब होता है x raised to half. This is x raised to half. Root means x raised to half. Now हमारा जो फॉर्मूला है वो है x raised to n. ओके, x raised to n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x raised to n minus 1. ठीक है, तो यहाँ पर n के जगह पे क्या है, हाफ. सो दिस इज हाफ x raised to हाफ माइनस 1, है ना. ये देखो n आगे आया, x raised to n minus 1, that is half minus 1. So half is equal to x raised to 2 ones are 2. How to take out the LCM? LCM लेते हैं ना हम लोग, हाफ माइनस 1, तो 2 ones are 2, 1 minus 2 upon 2, that becomes minus 1 upon 2. तो अगर मैं इसका LCM निकालता हूं तो मुझे आता है minus 1 upon 2. ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 upon 2 माइनस हाफ को नीचे लिया x के साथ, तो इट बिकम्स प्लस x raised to half. Now this becomes 1 upon 2 square root of x. तो आपको हमेशा याद रखना है, ये एक शॉर्टकट मिल गया आपको कि अगर हम लोग इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग, आई विल राइट विद अनदर कलर पेन, अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं रूट एक्स को, तो मेरा आंसर आना चाहिए 1 upon 2 रूट एक्स. गॉट इट? गॉट इट? ये आप हमेशा के लिए लिख लीजिए कि इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एनी वेरिएबल नॉट एक्स, जो भी होगा उसका आंसर आएगा 1 upon 2 रूट एक्स. ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम. नाउ माय क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 upon x. थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन में जा रहे हैं हम, अब धीरे धीरे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट, एज आई टोल्ड यू, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन जो है वो होता है 1 upon 2 रूट एक्स. ठीक है, तो अभी आप अगर इसको देखेंगे, ये अगर प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 upon x, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैं इसको समझ लो पूरे को समझ रहा हूं कि ये सिर्फ x है. ठीक है, तो उसका आंसर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, तो dy upon dx कैन बी रिटन एज 1 upon 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 upon x. एग्री कर रहे हो क्या आप? आर यू एग्रीइंग? वाई? यहां पे लिखा है ना बेटा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 upon 2 रूट एक्स. तो अगर मैं इसको सिर्फ x कंसिडर कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी 1 upon 2 स्क्वायर रूट ऑफ x. बट जो रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सिर्फ x नहीं है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म जिसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो वी विल राइट डाउन दिस एज डिफरेंशिएशन ऑफ, अंदर टर्म क्या है, 1 प्लस, सॉरी अंदर जो टर्म है वो है x प्लस 1 upon x.
समझ में आया, चेन रूल के तहत हो रहा है, क्योंकि मैं फिर बताता हूं आपको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स आई गॉट, बट जो चीजें एक्स के जगह पे है वो डिफरेंशिएबल है, इसलिए उसे अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये तो ऐसे ही होगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/x, और जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का, फिर बीच में प्लस है, नाउ आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, ठीक है, ये दो चीजें डिफरेंशिएट होगी। तो मैं ना थोड़ा सा अलग से यहां पर आपको बताता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x तो 1 आ जाएगा, ठीक है, dx/dx इज 1, व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, विल राइट डाउन डिफरेंशिएशन, ये x अभी x⁻1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x⁻1। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x⁻n का फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज x⁻n का फॉर्मूला, n आगे आता है, एंड राइटिंग डाउन हियर, n मतलब -1 आगे आ जाएगा, और x⁻1 -1, नाउ दिस इज -1 x⁻2, -1 is x⁻2, now this is minus x⁻2। अब अगर मैं x⁻2 को डिनोमिनेटर में लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1/x²। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला भी बन सकता है अगर आपको लिखना है। तो अभी आपका यहां पर क्या होगा, ये समझ में आया ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x गिव्स -1/x²। ये मैंने सॉल्व करके दिखाया, बट शॉर्टकट में मैंने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब इसका डिफरेंशिएशन का मैं आंसर लिख रहा हूं तो दिस टर्म विल रिमेन द सेम, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, इट विल रिमेन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x। एक मिनट, मैं कैमरे का पोजीशन थोड़ा चेंज करता हूं, ये ओके, सो दिस इज 1/, जो टर्म था इट इज नॉट गेटिंग चेंज, वो वैसा ही है, और आगे क्या हो रहा है, dx/dx इज 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहां पे निकाला हुआ है, तो दैट बिकम्स -1/x²। नाउ प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो डायरेक्टली आई विल राइट डाउन -1/x²। दिस इज योर आंसर। आई नो दिस इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मुझे पता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, नॉट डिफिकल्ट बट अभी आपके लेवल पे डिफिकल्ट है, बट जितना आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप इसको, ये जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद प्लीज इसे आप बार बार देख सकते हैं पॉज करके, जहां पे भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, और यू में आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। मैं फिर से एक बार समझाता हूं आपको, सी y वॉज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/x, तो मैंने आपको यहां पर डिराइव किया था फॉर्मूला की स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रूट x, so I got the answer 1/2 root x, but the term which is written in place of x is x plus 1/x, which is a complex term, जो फिर से डिफरेंशिएट हो सकता है, इसलिए बाय चेन रूल आई डिफरेंशिएट x प्लस 1/x। अब जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, आई गॉट, ये तो वैसे ही रहेगा जैसा था, अब ये डिफरेंशिएशन विल गो इनसाइड एंड डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएशन इज dx/dx, तो दैट विल बिकम 1, और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको मैंने कैसे किया है, मैंने अभी आपको यहां पर करके दिखाया था, उसका शॉर्टकट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज -1/x², सो दिस इज द फाइनल आंसर। प्लीज कॉपी दिस डाउन। प्रांजल, व्हाई यू जॉइन सो लेट, डू लेट मी नो द रीजन। अश्विनी, यू ऑल्सो ज्वाइन नाउ, प्लीज कॉपी दिस, कॉपी करो, एंड देयर विल बी अनदर प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व। ओके,
एक और सिंपल प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम यू. सपोज आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन विच इज y इज इक्वल टू साइन e रेस टू x. मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि e रेस टू x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e रेस टू x ही होता है. हमने डिस्कस किया था अभी, आपको अपने फॉर्मूला में भी लिख के रखा रहेगा. Okay, no problem, Pranjal. Now I have given you a problem. Y is equal to sine into bracket e raised to x. I expect the answer from you all. Please try to solve it. And if you can't, no problem. मैं solve करूँगा इसको. लेकिन आप try कीजिए इसको. I'm giving you 1 minute for this. चलो, your time starts now. दिस इज ओनली 1 और 2 स्टेप प्रॉब्लम. आंसर्स किसी को अगर आ गया है तो कमेंट में लिखो आंसर्स एंड देन आई विल सॉल्व इट. आई एम गोइंग टू डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर अदर्स, बट जिनको आंसर आ गए प्लीज कमेंट में अपना आंसर लिख दो. सी योर प्रेजेंस एंड योर एक्टिवनेस. अगर आप एक्टिव रहोगे यहाँ पर तो हम लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं. डू मोटिवेट अस बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन. Okay, it's 1 minute. Now I'll start solving it. क्या दिया यहाँ पर? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बेटा dy अपॉन dx, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमको पता है, yes cos x, बट x की जगह पे क्या है e रेस टू x, विच इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विल राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू x. चेन रूल के हिसाब से क्या कहते हैं इसे, चेन रूल. नाउ as we all know cos e raised to x already differentiated है, साइन का डिफरेंशिएशन है वो, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. आई विल राइट डाउन cos e raised to x, बट e raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e raised to x. So my final answer will be e raised to x cos e raised to x. This is our answer. I hope you understood this. Say yes, लिखो yes अगर आपको समझ में आया. अगर कहीं डाउट है तो do let me know your doubt in the comment section. समझ में आया तो यस करके कमेंट करो या लिखो नो डाउट सर, सो दैट आई कैन मूव फर्दर. हियर्स अनदर क्वेश्चन फॉर यू. टिल देन आप इससे अटेम्प्ट करो. y इज इक्वल टू कॉस रूट x, कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x. सॉल्व दिस नाउ. नो डाउट आदित्य, वेरी गुड. What about others? Pranjal saying yes, she has understood. Tanisha also yes. Priyesh understood. Sahil also have understood. Pankaj, what about Dheeraj? Okay, Dheeraj, good. Okay. Now what I'll do is I'll rub this. अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन लिखा हुआ है. Start doing. Anjali is also there. Okay, Anjali. Start solving it. Now solving these small problems will build up our confidence. हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है छोटे छोटे प्रॉब्लम करने से, और एक बार छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गए तो डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. ओके बेटा, चलो मैं स्टार्ट करूँ बिकॉज मैं 1-1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. वो कंप्लीट हो गया तो आई स्टार्ट सॉल्विंग, और आप अपने आंसर मैच कीजिए. अगर किसी को आंसर आ गया है तो तुरंत लिख दीजिए कमेंट में, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है. ओके, नाउ सी बेटा ये क्या दिया है यहाँ पर. अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ तो आई विल राइट डाउन दिस इज dy अपॉन dx.
cos x का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन x, बट x के जगह पे रूट x है। अगर ये सिर्फ x होता तो ठीक है, मेरे को आंसर आता था माइनस साइन x, बट यहां पर क्या दिया है मुझे, रूट x, स्क्वायर रूट ऑफ x। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म, तो बाय चेन रूल मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा। नाउ आई विल राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। हमने डिस्कस किया है कि नहीं किया है? स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होता है? मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर लेता हूं और वो फॉर्मूला देखिए आप ऊपर, डिफरेंशिएशन के बगल में जो लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। ठीक है, इसको मैंने डिराइव किया था आपके सामने अभी। तो व्हाट आई विल राइट डाउन द फाइनल आंसर एज, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y द फंक्शन इज माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका डिफरेंशिएशन मुझे आएगा 1/2 रूट x, ये फॉर्मूला के हिसाब से। सो फाइनली व्हाट आई कैन राइट डाउन, फाइनली मैं आंसर लिख सकता हूं, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ y कैन बी रिटन एज माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट x। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। साइन रूट एक्स वन जा साइन रूट एक्स, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा। सो दिस इज माय आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए, प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग लाइव सेशंस, कि हम लोग रियल टाइम में डाउट सॉल्व कर सकें। प्लीज कॉपी दिस, कॉपी कर लो, मुझे नोट्स में मांगूंगा आपसे। यू हैव टू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप वॉट एवर यू हैव कॉपीड। बहुत आराम से हम लोग कर रहे हैं, वी आर नॉट हरिंग अप। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू अ लिटिल डिफिकल्ट जोन। अभी हम थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी तरह के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, रब करूं मैं? नो डाउट, ओके, मूव करते हैं। एंड आई होप दिस इज कॉपीड बाय यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equal to sec into bracket tan root x। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है, tan root x। अब यहाँ पर जो डिफिकल्टी आपको आएगी, यानी जो कहाँ पे डिफिकल्ट, मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, तो डिफिकल्ट है भी या नहीं भी, जिनको समझ में आया उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली पॉइंट इज हमारा एक स्टेप बढ़ गया है। अभी मैं सेक को पहले डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो मुझे सेक का डिफ्रेंशिएशन जो आता है वो आएगा। उसके बाद मैं टैन को डिफ्रेंशिएट करूंगा, बाद में रूट एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करूंगा। इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। So first of all, if I've started differentiating, I will write down dy upon dx is equal to sec x का differentiation क्या होता है? It is sec x tan x. So what I'll get the answer initially? Sec tan root x और फिर tan root x। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा मैंने? Because sec x का differentiation क्या होता है? मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, differentiation of sec x is sec x and into tan x। तो ये आया sec x into tan x, बट x के जगह पे जो टर्म था हम वही लिखेंगे ना, tan root x। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। अब ये x का वैल्यू चेंज हो सकता है, तो यहां पर चेंज हुआ sec tan root x tan root x। तो मैंने आपसे कहा था कि यार हमको जो अंदर के कॉम्प्लेक्स टर्म होते हैं उससे भी डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो अंदर का कॉम्प्लेक्स टर्म क्या है? पहला क्या आएगा? tan root x। तो आई विल राइट डाउन हियर डिफरेंशिएशन ऑफ tan root x।
ठीक है, ये डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। हम एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो सेम होगा क्योंकि इसका काम हो गया, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है। tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। जब मैं tan को डिफरेंशिएट करता हूं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, हमने फॉर्मूला में लिखा था, आप पेज पलट कर देख सकते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो मुझे इसका आंसर आएगा sec, एक मिनट, यूज अनदर कलर पेन, तो आपको पता चलेगा कि नया टर्म क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर आ जाएगा tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, बट x का वैल्यू यहां पर क्या है, रूट x है। तो मैं कहूंगा यार रूट x तो ये भी कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसे भी डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो यस, वी विल डिफरेंशिएट रूट x ऑल्सो। सो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, ठीक है। अब क्या होगा, एक स्टेप और आएगा, यहां पर हम इसको तो सेम लिखेंगे, sec tan रूट x इंटू tan रूट x, sec स्क्वायर रूट x विल रिमेन एज इट इज sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का हमने यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है ऊपर कि रूट x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2 रूट x होता है। तो आई विल राइट डाउन हियर इनटू ब्रैकेट 2 रूट x। दिस इज द आंसर। और अगर आपको थोड़ा सा सिंपल करके, मतलब इसको थोड़ा सा ठीक तरह से लिखना है, तो आप 2 रूट x आगे लिख सकते हैं। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। एनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर? मेरे से पहले किसी को आंसर आया था क्या? अगर आ जाता है किसी को तो प्लीज आप कमेंट में लिख दीजिए, डू राइट डाउन इन द कमेंट। और अभी इस प्रॉब्लम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट में लिखिए, आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व द डाउट्स। ओके, आदित्य कह रहा है कि उसे 100% समझ में आ गया है। दैट्स गुड। ओके, तो मैं इसको रब करता हूं। सेकेंड स्टेप नहीं समझा? सेकेंड स्टेप ये वाला ना बेटा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। मैं बताता हूं, देखो क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या था, sec tan रूट x, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा समझ लो कि आपका क्वेश्चन है, मैं नीचे लिखूं, आप यहां पर लिखता हूं मैं, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन है सिर्फ sec x, ठीक है। यहां पर क्या है, सिर्फ x के जगह पे वी हैव tan रूट x। आपने कहा आपको सेकेंड स्टेप नहीं समझा, तो मैं बताता हूं, अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैंने फॉर्मूला में लिखा है sec x का डिफरेंशिएशन। अगर आप अपना पेज टर्न करेंगे, कम टू नो कि sec x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या लिखा हुआ है, sec x इंटू tan x। तो अगर ये sec x इंटू tan x है तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, sec x इंटू tan x। खाली डिफरेंस क्या है ये स्टेप में और ये स्टेप में, यहां पर जो था ना x के जगह पे क्या था, tan रूट x, इसलिए मैंने sec x की जगह पे क्या लिखा है, tan रूट x। यहां पर x के जगह पे क्या लिखा है, tan रूट x, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, अगर ये x है तो सिंपल टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आता, नहीं करेंगे तो भी चलता है। बट यहां पर जो x के जगह पे जो टर्म है वो कॉम्प्लेक्स टर्म है, मुझे वापस डिफरेंशिएट करना चाहिए उसको चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो x के जगह पे जो टर्म था उसको मैंने अलग से डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या हुआ, अभी थर्ड स्टेप में देखो, वो ये दोनों वैल्यू सेम है, ये इसका आंसर आ रहा है मुझे। तो tan x का आंसर मैं फिर से लिखता हूं आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो मैंने tan रूट x को जब डिफरेंशिएट किया तो मुझे आंसर आया sec स्क्वायर रूट x, ठीक है। ये तो आंसर मुझे आ गया। अब क्या था, रूट x को ही मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी कॉम्प्लेक्स है। नाउ वी आर एंटरिंग, हम लोग चेन ब्रेक करते हैं, जो ये जो चेन है ना, ये अंदर 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 जाके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले मैंने sec x को डिफरेंशिएट किया, बाद में tan रूट x को डिफरेंशिएट किया, बाद में रूट x को भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो जब हम लोग, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, रूट x का डिफरेंशिएशन आता है 1/2 रूट x, ठीक है।
तो जब मैंने रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो इट विल बी 1/2 रूट एक्स। आई होप आपको समझा रहेगा। सर लास्ट लाइन समझा दो कैसे। अच्छा, तो ये मैंने बेटा पहले ही फॉर्मूला निकाल दिया था, आप नहीं थे उस वक्त, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इट इज 1/2 रूट एक्स। कैसे आता है वो बताता हूँ मैं आपको। मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ या नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं कैमरा थोड़ा मूव कर रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस मिल गया अभी हमको। मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ हाउ आई गेट दिस रूट एक्स से 1/2 रूट एक्स। या फिर मैं कैमरा नीचे लेता हूँ थोड़ा सा, सो दैट विल बी बेटर। आई थिंक ये इतना जगह मुझे मिल रही है। ओके, नाउ देखो मैं समझाता हूँ हमको हाउ वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एज 1/2 रूट एक्स। तो ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं इसको ब्लू कलर से देता हूँ सो दैट मिक्स ना हो जाए वो। सो इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है मैं क्या डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक्स रेज टू हाफ। ठीक है, व्हाट आई एम डिफरेंशिएटिंग, एक्स रेज टू हाफ। तो अगर मैं एक्स रेज टू हाफ को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ठीक है, तो एन की जगह पे यहां पर क्या है, यहां पर हाफ है, तो हाफ आगे आया, एक्स रेज टू फिर एन माइनस वन यानी हाफ माइनस वन। सो व्हाट इज हाफ माइनस वन, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो दिस इज वन, टू वन जा टू और नीचे क्या आया टू। सो वन माइनस टू इज माइनस वन अपॉन टू। समझ में आया। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एक्स रेज टू माइनस हाफ। आगे क्या हो जाएगा फिर, ये हाफ तो ऐसे ही है, अगर मैं x को नीचे लेता हूं विद इट्स पावर वो आ जाएगा वन अपॉन एक्स रेज टू हाफ। तो मुझे पता है हाफ तो वैसे ही है, बट व्हाट इज दिस वन अपॉन एक्स रेज टू हाफ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इन शॉर्ट में इसको कैसे लिख सकता हूं, दिस इज वन अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो मैंने जब रूट एक्स को डिफरेंशिएट किया, मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था, मैंने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा, वन अपॉन टू रूट एक्स। प्रांजल यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आया। दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ। प्लीज बताओ मुझे अगर आपको समझ में आया है तो। प्लीज कॉपी कर लो इसको। यस सर, इट वॉज ओके, हाँ तो तुमको पता था ये, तो दैट वॉज ए मिस्टेक, इट वॉज वन अपॉन टू रूट एक्स। आई होप यू हैव कॉपीड दिस। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम देता हूं मैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते जाएंगे अब। वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सपोज आई गिव यू 3x प्लस 7। इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, स्टार्ट सॉल्विंग। मैं आपको हिंट देता हूं, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, ये ऊपर अभी ये फिलहाल क्या है, वन अपॉन 3x प्लस 7 रेज टू हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, रेज टू हाफ। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 रेज टू माइनस हाफ। जब ये ऊपर आ गया तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है। सो दिस इज नाउ y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 रेज टू माइनस हाफ। Now tell me, now can you start from here? आप डिफरेंशिएशन यहां से स्टार्ट कर सकते हो क्या? x रेज टू n का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अभी। डायरेक्टली यू यूज द फॉर्मूला y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n। स्टार्ट सॉल्विंग, एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं करने ही वाला हूं, वैसे भी करता हूं मैं प्रॉब्लम सारे सॉल्व।
चलो, सो इफ आई गॉट दिस, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे लिखा है मैंने कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n इज n रेज टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। थोड़ा सा ऊपर ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, नाउ दिस y विल बिकम y इज इक्वल टू, इफ आई डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग y आई विल गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये x रेज टू n है तो n आगे आ जाएगा, मतलब ये जो पावर है वो आगे आता है, दैट इज माइनस हाफ इंटू 3x प्लस 7, और यहां पर माइनस हाफ है ना, तो जो n है उसमें से 1 माइनस होता है, तो n यहां पर क्या है माइनस हाफ, उसमें से 1 माइनस होगा, वी विल टेक एलसीएम, माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये माइनस 1 वैसे रहेगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट विल बिकम माइनस 2, और नीचे का डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, सो माइनस 1 एंड माइनस 2 इज माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये मेरा पावर आएगा, आई राइट डाउन हियर माइनस 3 अपॉन 2। मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में आप फिर से मुझे पूछोगे कि ये माइनस 3 अपॉन 2 पर कैसे आया सर आपको। सो इंस्टेड आइदर यू कॉपी दिस डाउन, एंड इफ यू हैव एनी ऑप्शन टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ लाइव वीडियो, देखो अगर आपसे हो रहा है तो, या फिर आप इसको लिख के ले लो कि मुझे ये माइनस 3 अपॉन 2 कैसे आया। सी आई गॉट माइनस हाफ रेज इंटू 3x प्लस 7 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2। तो मैंने अभी क्या किया है, सिर्फ ये पावर को सॉल्व किया, जो पावर था ना ऊपर उसको सॉल्व किया है, बट अंदर जो टर्म है 3x प्लस 7 दैट इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स टर्म, जिसे हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए बाय चेन रूल। तो ये जो टर्म है यहां पर, इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो आई विल राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 7। तो मैंने डिफरेंशिएशन का साइन डाल दिया, नाउ आई विल डिफरेंशिएट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो आई विल राइट डाउन दिस एज differentiation of y with respect to x is given by minus half 3x plus 7 raised to minus 3 upon 2, and what about this, ये differentiation अंदर जाएगा, constant rule से 3 आगे आएगा, और differentiate कौन होगा, x will get differentiated dx upon dx plus 7 है, तो differentiation of 7, तो मैंने ये भी पहले डिस्कस किया हुआ है आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, नाउ दिस विल बी रिटन एज माइनस हाफ 3x प्लस 7 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 3, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। ठीक है, so my final answer is minus 1 into this is minus 3x plus 7 raised to minus 3 upon 2। ठीक है, और यहां पर मुझे आ गया 3, सिर्फ 3 बच गया मुझे, और नीचे आ रहा है 2। तो finally I will write down the answer here in this box। so differentiation of y with respect to x is minus 3 upon 2 into bracket 3x plus 7 raised to minus 3 upon 2. This is our final answer. I hope you understood this. अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, I'll definitely help you to understand this. मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या किया है, ये 3 को आगे लिया -3, ये 2 को उसके नीचे, और ये ब्रैकेट मैंने लास्ट में लिख दिया 3x प्लस 7 रेज टू माइनस 3 अपॉन 2। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं बताऊं क्या, मैं बताऊं आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आप लिख सकते हो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 इंटू 3x प्लस 7, ये जो -3 अपॉन 2 उसको आप 3√2 लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर हो सकता है। समझ में आया? से यस इफ यू हैव अंडरस्टूड, राइट इन द कमेंट। अगर नहीं तो डू लेट मी नो, मुझे बताओ। जैसे मैंने अभी साहिल का डाउट सॉल्व किया, मैं वैसे आपका भी डाउट सॉल्व कर सकता हूं। कॉपी कर लो इसे।
यस, धीरज इज सेइंग यस, ही हैव अंडरस्टूड। अदर्स प्लीज फॉलो एंड बताओ मुझे कि आपने कॉपी किया है नहीं। कॉपी कर लिया तो मैं इसे रब कर दूं क्या? क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? साहिल इज सेइंग यस, तनिषा इज सेइंग यस। प्लीज कॉपी करो इसे फास्ट सो दैट आई कैन रब इट। अंजलि इज सेइंग यप। चलो आई विल रब दिस नाउ। हो गया कॉपी? थम्स अप। अगर आपका कॉपी हो गया तो थम्स अप करो, मैं इसे रब कर देता हूं मैं। ओके चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक नया रूल, आई मीन इट्स नॉट न्यू, हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ा टाइम पहले, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल। सो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? व्हाट डज द प्रोडक्ट रूल से? कुछ याद आया आपको नाम से? नो अच्छा, अंजलि लिखा कॉपी नहीं किया है। नो इट्स टू लेट बेटा, मैंने रब कर दिया है। अभी इस बार का मैं आपको और टाइम दूंगा लिखने के लिए। सो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको समझाया था कि जब हम दो वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज u इंटू वी। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग? दो वेरिएबल्स का, विच इज u इंटू वी। इन दिस केस क्या होता है? पहले हम लिखते हैं u और डिफरेंशिएट कौन सा होता है? क्या डिफरेंशिएट होता है? v यानी सेकेंड वाला। फिर बीच में आता है प्लस, और फिर हम लोग यहां पर जो डिफरेंशिएट होगा अब उसको आगे लिख देंगे हम लोग। क्या डिफरेंशिएट होना बाकी? u। सो आई विल राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये आपको याद रखना है। पहले u डिफरेंशिएटेड v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। याद है आपको ये फॉर्मूला? इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं लिखता हूं यहां पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ समझो x और log x। ठीक है, एक एग्जांपल में लिख रहा हूं। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्या आएगा? u यानी x, और डिफरेंशिएट कौन होगा? डिफरेंशिएशन विल बी डन ऑफ log x। ठीक है, फिर बीच में क्या आएगा? प्लस। अब किसका डिफरेंशिएशन हो गया है? log x, तो log x यहां पर लिखा जाना चाहिए, उसका अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन किसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है? x का, तो आई विल राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ x। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सो दिस इज x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x? फॉर्मूला का पन्ना अगर आप पलट कर देखोगे, तो टर्न द पेजेस विल कम टू नो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, प्लस यहां पर ये log x ऐसे ही होगा क्योंकि उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x को, तो x का डिफरेंशिएशन इज 1। तो बेटा अगर आप यहां पर देखोगे तो ऊपर नीचे x है, आई कैन कैंसिल इट। यहां पर मुझे क्या बच रहा है? 1 प्लस log x। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। पहले u आगे रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, फिर v को आगे रखना है और u को डिफरेंशिएट करना है। अब आपको जब दो वेरिएबल दिए रहेंगे ना, अगर आपको समझ में नहीं आता रहेगा तो आप क्या करो? इसको u लिख लो, इसको v, और फिर अकॉर्डिंगली उसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े? ओके, इसको कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न था। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन x इंटू log x इंटू, हाँ, तो इसका मतलब आपको
उस तरह का प्रश्न आ गया, u इंटू वी वाला, प्रोडक्ट वाला। आई मीन साइन एक्स इज u एंड लॉग एक्स इज v। समझ में आया? साइन एक्स इज u एंड लॉग एक्स इज v। चलो सॉल्व करो, स्टार्ट सॉल्विंग, जस्ट अप्लाई इट इनटू द फॉर्मूला। आगे का मैं बताता हूं आपको क्या करना है। एटलीस्ट आप जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है प्रोडक्ट रूल, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसमें आप वैल्यू सबमिट कीजिए। चलो, तो इफ आई डिफरेंशिएट, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं y को विद रिस्पेक्ट टू s, आई विल राइट डाउन dy अपॉन dx। y इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या आएगा, पहले u यानी साइन x, फिर क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो आई विल राइट डाउन डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, log x, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन। अब कौन डिफरेंशिएट हो गया है, log x, यानी v पहले आएगा। अब कौन डिफरेंशिएट होना चाहिए, दैट इज साइन x। अगर आप अभी से कंपेयर करोगे, ऊपर देखो u डिफरेंशिएशन ऑफ v, डिफरेंशिएशन ऑफ v log x, डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। ओके, अब क्या करना है, जैसे दिया है वैसे इसको डिफरेंशिएट करते जाना है। Who is doing this मस्ती? हेलो, वी आर नॉट हेयर टू चैट बेटा, बाद में करते हैं सब। साहिल, कुछ जरूरी है वही कमेंट करो, डोंट डिस्टर्ब। साइन एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स ऐसे ही होगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि वहां पर कुछ ऑपरेशन ही नहीं किया गया है। नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट लॉग एक्स, हमने अभी डिस्कस किया था लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। फिर यहां पर साइन क्या है, प्लस लॉग एक्स विल बी रिटन एज इट इज, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है। बट साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, बट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई कैन राइट डाउन दिस एज साइन एक्स, ये नीचे इसलिए 1 अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। किसी को ऐसा आंसर आ गया था मेरे से पहले? किसी को ऐसा आंसर आ गया था मुझसे पहले? कमेंट में बताइए आप, इफ यू हैव डन बिफोर मी, आई विल बिलीव इट, नो प्रॉब्लम, मैं बिलीव कर लूंगा कि आपने कर लिया या नहीं। इट्स ओके साहिल। अच्छा, आदित्य को आंसर आ गया था, तनिषा को आंसर आ गया था, वेरी गुड। प्रांजल को भी आंसर आ गया था। आई अप्रिशिएट यू ऑल। बहुत आसान है ये, अगर आपने ये प्रॉब्लम कर लिया, मतलब आपको समझ में आ रहा है। स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे, एंड दिस इज गुड साइन। तनिषा, आई गॉट द आंसर फर्स्ट। ओके ओके तनिषा, वेरी गुड, गेट ए प्राइज वंस द क्लास रीओपन्स। आई राइट डाउन योर नेम, आई गिव यू प्राइज। ओके, तो आपने कॉपी अगर कर लिया है, जिनको नहीं आया था वो प्लीज इसे कॉपी कर लीजिए। धीरज ऑल्सो गॉट द आंसर। प्रियेश को भी आंसर आ गया है, कॉपी करके। अच्छा ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे रब करें हम। आदित्य त्रिपाठी, मी। ओके, से यस इफ आई शुड रब दिस। स्नेहा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। आपको समझ में आ रहा है? चलो हम रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, दैट इज y is equal to a raised to x into bracket 2x square plus 1. That is a raised to x into 2x square plus 1. x का पावर 2 है। ओके, साहिल भी यस बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी दिस इज y is equal to a raised to x into
2x² + 1। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज टर्न द पेजेस एंड गो टू द फॉर्मूला सेक्शन, जहां पे आपने फॉर्मूला लिख के रखे हैं। आपको वहां पर a⁻x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x इज a⁻x into log a। ये आप ध्यान में रखिए, a⁻x log a। तो इसका यूज कीजिए। u इंटू वी का भी एप्लीकेशन आपको करना है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, और उसमें u और v का वैल्यू पुट कर देना है आपको। ओके I'll do one step, अपना स्टेप मैच कीजिए। If I start differentiating y with respect to x, u into v अगर अप्लाई करें तो पहले आएगा u, that is a⁻x, then differentiation of v, that is 2x² + 1, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2x² + 1, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x। आप फॉर्मूला अगर मैच करेंगे u इंटू वी के फॉर्मूला से, तो a⁻x डिफरेंशिएशन ऑफ v, यानी u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। ओके, आदित्य ने कर लिया है, आंसर मैच करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, a⁻x विल रिमेन a⁻x, बट इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन अंदर जाएगा, कांस्टेंट रूल से 2 आगे आएगा, और कौन डिफरेंशिएट होगा? x²। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ये वाला टर्म यानी 1, ये ब्रैकेट इस तरह से डिफरेंशिएट हुआ है। आगे आते हैं, प्लस 2x² + 1 विल बी रिटन एज इट इज, बट डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x इज दिस, a⁻x log ऑफ a। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। a⁻x, x² का डिफरेंशिएशन x⁻n के हिसाब से n, x⁻n - 1, अगर वो x² है तो 2 आगे आ जाएगा, 2x और 2 - 1 is 1, तो सिर्फ हम 2x लिखेंगे। x² का डिफरेंशिएशन इज 2x, प्लस 1 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आगे चलते हैं हम, प्लस 2x² + 1 विल रिमेन एज इट इज, और a⁻x log a इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, विल राइट डाउन द फाइनल आंसर। तो मैं अभी यहाँ पर तो फिलहाल मैं लिखता हूँ 2x और इंटू a⁻x प्लस a⁻x log a को मैंने पहले लिख दिया, और जो ब्रैकेट उसे बाद में 2x² + 1। और सिंप्लीफाई करूँ मैं इसे, आई कैन टेक आउट a⁻x एज कॉमन। अगर a⁻x मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2x यहाँ पर बच गया, और यहाँ पर क्या बचा? log a इंटू 2x² + 1। आई कैन कंसिडर दिस एज द फाइनल आंसर। ओके बेटा, ये मेरा फाइनल आंसर है। आप बोलोगे इसके ऊपर तक चलेगा क्या मुझे आंसर? सर 4x ना, व्हाट 4x, विच स्टेप? हाँ करेक्ट, यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। x² का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन ये वाला भी तो 2 है, तो शी इज राइट, दिस इज 4x। 2 आगे आया, 2 2 = 4, 4x + 0, तो ये भी बन जाता है 4x, और यहां पर भी आएगा 4x। यस प्रांजल, यू आर राइट। मैं फिर समझाता हूं, प्रांजल कह रही है कि सर ये वाला आपने 2x क्यों लिखा है? x² का डिफरेंशिएशन 2x है, पर ये वाला 2 कहां गया? सो मैं भूल गया था उसे लिखना, सो 2 × 2 इज 4x + 0। तो आगे के आंसर में ऐसे चेंजेस आते रहेंगे। Yes sir, it is 4x, correct. I'm sorry.
आप इसे कॉपी कर सकते हैं। सबको आंसर आ गया था राइट? किनको किनको आया था, रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड प्रांजल। आदित्य को भी आ गया। और जिनको नहीं आया प्लीज उसे कॉपी कर लीजिए, डू कॉपी इट। कहीं पे अगर मिस्टेक हुई रहेगी या फिर आपने हाफ स्टेप्स राइट किए, हाफ से गलत आ गया रहेगा, तो उसे कंप्लीट कीजिए। लेटेस्ट मैं इसको रब कर देता हूँ इसे, ठीक है। नाउ आई विल गिव यू एन इजी प्रॉब्लम। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं। आशु का भी हो गया, आई मीन अश्विनी, प्रियेश का भी हो गया। ओके चलो रब करते हैं। सी, कॉपिंग द प्रॉब्लम इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव। याद रखो, हमको सिर्फ कॉपी नहीं करना है। समझ में आया? नहीं कॉपी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई सेंड यू द नोट्स, बट समझने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ अगर कॉपी करना रह गया तो नो प्रॉब्लम। चलो एक नया क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दिस इज x रेज टू 5 इंटू ई रेज टू एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व वेरी इजी टर्म्स। x रेज टू 5 भी बहुत आसान सा टर्म है, और e रेज टू एक्स, तो u भी इजी है डिफरेंशिएट करने के लिए, और जो v के जगह पे है e रेज टू एक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। एंड आई डेफिनेटली होप आई विल गेट द आंसर फ्रॉम यू बिफोर आई डू इट। I just want to ask if the video quality is good or not. Do let me know in the comment. वीडियो क्वालिटी अच्छी है क्या? दिख रहा है क्लियर या ब्लर है? Okay, Pranjal is saying she got the answer. Yes, it was very easy question. बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, तो प्रांजल गॉट द आंसर फर्स्ट। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। आपको मजा आ रहा है? डिफरेंशिएशन है ही ऐसा, मैथ्स ऐसा ही है, जिनको समझ में आ रहा है उन्हें बहुत मजा आता है। ओके, नाउ सी, u इंटू वी अप्लाई करूं मैं इसमें, तो पहले u दैट इज x रेज टू 5, फिर कौन डिफरेंशिएट होगा? e रेज टू x जो कि v है, बीच में प्लस, फिर e रेज टू x v। नाउ व्हाट विल बी डिफरेंशिएटेड? u that is x raised to 5। ऑर्डर करेक्ट है ना बेटा? देखो, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, जो कि हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? आई राइट डाउन x रेज टू 5 एज इट इज, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई ऑपरेशन कुछ किया ही नहीं गया, तो वो ऐसे रहेगा। बट e रेज टू x डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर e रेज टू x डिफरेंशिएट हो रहा है तो हमें पता है कि e रेज टू x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e रेज टू x ही होता है। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज अपना फॉर्मूला आप चेक कीजिए। ओके, नाउ फिर यहां पर e रेज टू x, अब कौन डिफरेंशिएट होगा? x रेज टू 5। ये थोड़ा सा हम चेक करते हैं। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? n x रेज टू n माइनस 1। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूं और मुझे यहां पर दिया गया है x रेज टू 5, तो 5 आगे आ जाएगा, x रेज टू 5 माइनस 1 बिकम्स 4। तो x रेज टू 5 का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा? मैंने यहां पर सॉल्व किया है, और वो है क्या? 5x रेज टू 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद आई कैन राइट डाउन दिस एज x रेज टू 5 इंटू ई रेज टू x, डॉट नहीं डाला तो भी चलेगा, प्लस 5x रेज टू 4 इंटू ई रेज टू x। मैं इसमें से कॉमन भी निकाल सकता हूं। मैं इसमें से x रेज टू 4 और e रेज टू एक्स, ये दोनों भी कॉमन निकाल सकता हूं मैं। देखो, यहां पर भी x रेज टू 4 है, और x रेज टू 5 में से भी मैं x रेज टू 4 कॉमन निकाल सकता हूं। यहां पर भी e रेज टू एक्स है, यहां पर भी e रेज टू एक्स है, तो उससे भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो मुझे बचा क्या? यहां पर अगर x रेज टू 5 में से x रेज टू 4 निकल गया तो मुझे क्या बच रहा है? सिर्फ x। e रेज टू एक्स निकल गया, e रेज टू, तो कुछ नहीं बचा यहां पर। आगे आते हैं, इसमें से e रेज टू एक्स और x रेज टू 4 निकल गया, तो क्या बचा? 5।
So how many of you got this answer? How many of you got the answer till step 1, step 2 and step 3? Write down in comment. जिसको 1 तक आया था, 2 तक आया था और 3 तक आया था. फर्स्ट तो सब लिख लेंगे ये वाला. दिस इज ओनली सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मूलाज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यू इन द फॉर्मूला. बाकी लोग बताओ किसको कौन से स्टेप तक आंसर आया था, 1, 2 और 3. आदित्य, राइट डाउन योर स्टेप. अच्छा, यू गॉट द एंटायर आंसर टिल 3. आपने कॉमन भी निकाला था. पूरा आया. वेरी गुड प्रांजल. स्टेप 2 चलेगा. स्टेप 2 इज राइट आंसर. तनिषा, नॉट ए प्रॉब्लम. इफ यू गॉट योर आंसर टिल स्टेप 2 दैट मीन्स यू गॉट फुल आंसर, नो प्रॉब्लम. आदित्य को टिल स्टेप 3 आया है. वेरी गुड, आई अप्रिशिएट. व्हाट अबाउट अदर्स? प्रियेश को फुल आया. धीरज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. धीरज, व्हाट हैपेंड टू यू? अंजलि स्टेप 3 तक आ गया. वेरी गुड. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सिमिलर क्वेश्चन, बाउंडेड बाय अ tan. y is equal to tan and into bracket we will have x into e raised to x. चलो सॉल्व करो. वेरी इजी क्वेश्चन. धीरज जामले स्टेप 3 तक. वेरी गुड. तो रिप्लाई करो बेटा ऐसे. न्यू क्वेश्चन फॉर यू एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. वी हैव टुडे कंडक्टेड 1.5 hour सेशन एंड आई थिंक दैट वाज फ्रूटफुल. अच्छा गया. आपको भी समझ में आया, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे. सो डोंट गेट टायर्ड. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अच्छे से सॉल्व करो एंड इफ यू कांट देन आई सॉल्व इट. मैं सॉल्व करूंगा उसे. तो मैं आपको एक स्टेप करके दिखाता हूं. आगे आप कीजिए. इफ आई डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वुड आई गेट? आई वुड गेट, पहले तो tan का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं. डिफरेंशिएशन ऑफ tan और फिर बाद में x इंटू ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा. हमें सबको पता है. अगर नहीं पता है तो पीछे का जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, ओपन दैट पेज एंड चेक द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x. दैट इज sec स्क्वायर x. बट यहां पर x के जगह पे क्या है? x इंटू ई रेज टू एक्स. तो अभी तक, सॉरी, अब तक मैंने किस चीज को डिफरेंशिएट किया है? टिल नाउ व्हाट आई हैव डिफरेंशिएटेड? आई हैव डिफरेंशिएटेड tan. मैंने सिर्फ tan को डिफरेंशिएट किया तो मुझे tan का डिफरेंशिएशन आया sec स्क्वायर x. लेकिन जो टर्म x के जगह पे है दैट इज ए कॉम्प्लेक्स टर्म. तो इसका मतलब है मुझे उस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करना है. तो मैं लिखूंगा यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स. ठीक है. नाउ sec स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा x इंटू ई रेज टू एक्स. बट यहां पर आप देख रहे हैं दो वेरिएबल्स हैं, तो यहां पर मुझे प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, यानी u इंटू वी यूज करना पड़ेगा. आदित्य, सेंड मी योर स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप. अगर आपका हो गया है तो प्लीज भेजिए, देन आई विल सॉल्व इट. लेट मी चेक. प्लीज व्हाट्सएप में योर स्क्रीनशॉट, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है. ओके. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स. इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? u डिफरेंशिएशन ऑफ v. तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v विच इज ई रेज टू एक्स. फिर ये जो v है वापस लिखेंगे और किससे डिफरेंशिएट करेंगे? x विच इज इन द प्लेस ऑफ u. तो आई विल गेट इट एज sec स्क्वायर x इंटू ई रेज टू एक्स. आदित्य, प्लीज सेंड मी योर प्रॉब्लम बिफोर आई कंप्लीट. x into e raised to x. x differentiation of e raised to x is e raised to x. e raised to x remains as it is और x का differentiation आता है 1, है ना. x का differentiation क्या आता है? 1.
तो आगे देखते हैं हम फाइनल आंसर सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स। चाहे तो हम इसमें से ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो मैं निकाल के इसको सबसे आगे ले लेता हूं मैं। ई रेस टू एक्स यहाँ पर, उसके बाद है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, और यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी स्टेप डू लेट मी नो। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताइए प्लीज कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर आदित्य आंसर। बेटा भेजा नहीं अभी तक आपने? ओके, प्लीज कॉपी कर लो इसे। एंड टुमारो शेड्यूल विल बी द सेम, 11 AM विल बी स्टार्टिंग। 11 बजे हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विथ प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद का जो क्वेश्चन रूल है उसे डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रांजल वैद्य सिंह समझा? ओके गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? कॉपी हो गई क्या? अगर कॉपी हो गई तो फिर थम्स अप। मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा मैं। प्लीज सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, और अगर डाउट रहेगा तो रिवर्ट मी ऑन व्हाट्सएप सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर आई कैन सॉल्व योर डाउट्स। तनिषा इज सेइंग डन। ओके, सी यू, बाय, सी यू ऑल। और कल हम लोग मिलते हैं इसी समय, और मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बाय। ये वीडियो अवेलेबल होगा इसके बाद भी, आप देख सकते हैं बार बार। मैं इसे स्टोर कर